صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا ہفتہ واری پروگرام تبصرہ۔ اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ مسلمانوں کی ایک بھیڑ اگر کسی مندر میں گھس کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ بھی وہی جواب دیں گے جو میرے ذہن میں ہے کہ پھر تو ان مسلمانوں پر دیش دروہی کا مقدمہ ہو جائے گا۔ کئی ہندوتوا تنظیمیں ان کے پیچھے پڑ جائیں گی، ان کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، ان کے خلاف گودی میڈیا چینلز پر کئی طرح کے جہادی ڈیبیٹ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خبر اس کے برعکس ہو تو، یعنی اگر ہندوؤں کی ایک بھیڑ کسی مدرسے میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایسا کرناٹک میں ہوا ہے۔ کرناٹک میں 15ویں صدی عیسوی کے قدیم مدرسے میں گھس کر بھیڑ نے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ یہ واقعہ کرناٹک کے بیدر میں محمود گواں مدرسے میں 5 اکتوبر کو پیش آیا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے 9 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے 4 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ موصولہ خبر کے مطابق دسہرہ کے جلوس میں شامل لوگوں کے ایک گروپ نے کرناٹک کے بیدر میں 15ویں صدی عیسوی کے ایک قدیم مدرسے میں گھس کر جے شری رام اور ہندو دھرم کی جے کے نعرے لگائے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بیدر کے محمود گواں مدرسے میں بدھ 5 اکتوبر کو پیش آیا۔ اس سے متعلق ویڈیو کو لوگوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ ویڈیو میں مدرسے کی سیڑھیوں پر بلند آواز میں موسیقی، ڈھول پیٹتے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے ایک بڑا گروپ نظر آ رہا ہے۔ مدرسے کے اندر اس بھیڑ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے مقامی پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ملزمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق مسلم کمیونٹی نے یہ بھی الزام لگایا کہ پوجا کے دوران ہجوم کے ذریعے ناریل توڑنے سے مدرسے کے ڈھانچے کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ تاہم پولیس نے اس الزام کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے مظاہرین کو ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ یقین دہانی کہاں تک پہنچے گی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ جب ہم پر ظلم ہوا اور ہم نے آواز اٹھائی تو یقین دہانی ہی کرائی گئی۔ یقین دہانی کے بعد اکثر ایسا ہوا کہ مظلوم مظلوم ہی بنا رہا اور ظالم ظالم ہی، یعنی انصاف کی کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس واقعے کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا، بیدر کی تاریخی محمود گواں مسجد اور مدرسے کا 5 اکتوبر کا نظارہ انتہا پسندوں نے گیٹ کا تالا توڑ دیا اور اس کی بے حرمتی کی کوشش کی۔ چیف منسٹر بسواراج بمبئی اور بیدر پولیس، آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ BJP صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دے رہی ہے۔ ناظرین، یہ مدرسہ ایک تاریخی عمارت ہے جسے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ASI نے محفوظ کیا ہے۔ 1460 کی دہائی میں بنایا گیا یہ قدیم ڈھانچہ بہمنی سلطنت کے تحت ہند اسلامی فن تعمیر کے علاقائی انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ورثے کو قومی اہمیت کی یادگاروں کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ اس کا نام دکن کی بہمنی سلطنت میں ایک فارسی نژاد وزیر محمود گواں کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ایک نظریہ آپ کا اور میرا ہے کہ مدرسے میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگانے والوں پر سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان پر UAPA کا مقدمہ چلنا چاہیے اور فوری طور پر تمام لوگوں کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نظریہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، گودی میڈیا کا نظریہ اس سے کچھ الگ ہوگا۔ اسی خبر کو گودی میڈیا چینلز پر اگر پیش کیا جائے تو گودی میڈیا اینکرز چیخ چیخ کر کہیں گے کہ کچھ لوگ اگر مدرسے میں جا رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مدرسے میں سروے کرنے کے لیے گئے ہوں۔ کیا وہ مدرسہ ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پتہ وہ لوگ جے شری رام کا نعرہ لگانے کے بعد مدرسے میں نماز پڑھ کر واپس آتے۔ گودی میڈیا چینلز والے الٹا مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا کر ہیڈ لائنز چلانے لگ جائیں گے۔ مدرسے میں جے شری رام کے نعرے پر بوال کیوں؟ کیا مدرسہ صرف مسلمانوں کی جاگیر ہے؟ کیا مدرسے میں ہندوؤں کو پوجا سے روکا جا رہا ہے؟ کیا اس مدرسے پر بلڈوزر چلائے گی سرکار؟ مدرسے میں جے شری رام کے نعرے سے دقت کیوں؟ ایسے ہیڈ لائنز کسی چینل پر دیکھنے کو تو نہیں ملے، لیکن گودی میڈیا اس سے ملتا جلتا اور اسی جیسا کنٹینٹ پیش کرتا ہے۔ یہی اس گودی میڈیا کا کام ہے کہ یہ ہر نیوز کو جانبدارانہ طریقے سے دکھاتا ہے۔ ناظرین کرام،
दूसरी अफसोसनाक खबर गुजरात से है। गुजरात में पुलिस ने मुसलमानों को बांधकर पीटा और तमाशा देखने के लिए गांव वालों को जमा भी किया। गुजरात के खेड़ा जिला के उंधेला गांव में पुलिस के हाथों खंबे से बांधकर मुस्लिम नौजवानों की पिटाई के वायरल वीडियो ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। दी प्रिंट में शायद जानकी देवी की रिपोर्ट ने इंतजामिया के मुतासिबाना रवैये की पोल खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उंधेला के रिहायशियों का कहना है कि उन्हें मकामी पुलिस एहलकारों ने मंगल की दोपहर 1 बजे के करीब गांव के मरकजी चौक पर जमा होने को कहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस 10 मुस्लिम नौजवानों को चौक पर ले आई। उन सबको बिजली और टेलीफोन के तारों के साथ खंभों से बांध दिया गया और सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार, जिनमें से एक के पास पिस्तौल भी था, उन्होंने डंडों से पीटा। फिर करीब ही खड़ी पुलिस वैन में डालकर ले गए। बाद में मंजर आम पर आने वाले वाक़ये की वीडियो में देखा जा सकता है कि जब नौजवानों की पिटाई की जा रही थी तो वहां मौजूद गांव वाले भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। कुछ और लोग भी खुशी मनाते और तालियां बजाते नजर आए। उंधेला की रहने वाली गीता बेन शर्मा का कहना है कि लोगों को हर घर में पैगाम भेजकर बुलाया गया। मुलजिमान की पिटाई से पहले हम वहां जमा हो गए थे, वहां कैमरे लगे थे और उसकी वीडियो भी बनाई गई थी। बुध के रोज जब रिपोर्टर ने उंधेला गांव का दौरा किया तो चौक पुलिस एहलकारों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से कोई भी गुज़िश्ता रोज के वाक़ये के बारे में बोलने को तैयार नहीं था। हो सकता है कि उन्हें शर्म आ रही हो सकता है कि उनकी इंसानियत जाग गई हो, इसलिए कि एक दिन पहले वो हैवानियत के शिकार थे, वो दरिंदगी के शिकार थे। नाजरीन, आखिर उन मुस्लिम नौजवानों का जुर्म क्या था? उन पर इल्ज़ाम है कि वो उन 43 लोगों में शामिल थे जिन्होंने मुबैना तौर पर हिंदुओं के प्रोग्राम पर पथराव किया, तशद्दुद फैलाया और कल रात उसी चौक में होने वाले गरबा प्रोग्राम में खलल डाला। इस वाक़ये में 43 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। उनमें से 13 पुलिस की हिरासत में हैं, बाकी फरार हैं। लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ाम है जिसका कोई सबूत सामने नहीं आ सका है। पथराव करने वालों की कोई वीडियो सामने नहीं आई है, जबकि तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों के तर्ज पर पुलिस वालों के जरिए सरेआम सज़ा देने और खंबे से बांधकर पीटने के वाक़ये ने मुल्क भर में गम और गुस्से को जन्म दिया है। हम यहाँ पर उन पुलिस वालों से मालूम करना चाहेंगे कि अगर मान भी लिया जाए कि वो लोग मुजरिम थे, तो आईन और संविधान की किस दफ़ा के तहत पुलिस वालों को ये इजाज़त दी गई है कि मुजरिमों को खंबे से बांधकर जानवरों की तरह पीटा जाए और इस दरिंदगी को देखने के लिए लोगों को दावत देकर बुलाया जाए? क्या जब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कुछ दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े लोगों ने मस्जिदों पर पथराव किया था, हत्ता कि मस्जिदों के मीनारों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने का घिनौना काम किया था, तो क्या उन लोगों को भी पुलिस प्रशासन ने इसी तरह खंबे में बांधकर पीटा था? क्या जिन लोगों ने कर्नाटक के तारीखी मदरसे में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए, उन लोगों को भी मुसलमानों के सामने खंभों से बांधकर पीटा जाएगा? आखिर कानून के साथ ये क्या खिलवाड़ चल रहा है? अदालतें क्यों खामोश हैं? वर्दी कानून की रखवाली के लिए दी जाती है। जब इसी वर्दी को कानून की धज्जियां उड़ाने और तासुब को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? ये तो थी गुजरात की खबर। मध्य प्रदेश से भी इसी तरह की अफसोसनाक खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में गरबा पिंडाल पर पथराव करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 3 मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चला दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में गरबा पिंडाल में 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ों के बाद पथराव हो गया। पुलिस ने 19 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें से 3 अफराद के घरों को गैर कानूनी तामीरात बताकर तोड़ दिया गया। एक पुलिस अफसर ने मंगल को बताया कि जिले के सीतामऊ थाना हल्के के सुरजानी गांव में 2 अक्टूबर की रात को पथराव का वाकया पेश आया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ों के बाद गरबा पिंडाल में पथराव की इत्तिला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। एसपी अनुराग सुजानिया ने सहाफ़ियों को बताया कि 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनमें से 7 को तफ्तीश के बाद हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मुलजिमीन आदि मुजरिम हैं। एसपी ने बताया कि मंगल को महकमा रेवेन्यू की मदद से तीनों मुलजिमीन की 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत की 4500 मुरब्बा फीट से ज़्यादा की गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है।
पुलिस अफसर ने बताया कि पिंडाल में पथराव के सिलसिले में ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कई खबर रसा इदारों ने इस वाक़ये को गरबा पिंडाल पर मुसलमानों की तरफ से पथराव के तौर पर पेश किया है, लेकिन पुरतशद्दुद झगड़े का जिक्र नहीं किया है। एसपी अनुराग सोजानिया ने कहा, दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े की वजह से गरबा पिंडाल में पथराव की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। मंसूर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संदीप शिवा ने कहा, मकानात गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे, इसलिए हमने उन्हें गिरा दिया। हम तमाम मुल्ज़िमीन की जायदाद के कागजात चेक कर रहे हैं और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाजरीन ध्यान दीजिएगा, मामला 19 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, गिरफ्तार 11 लोगों को किया गया है, लेकिन मकानात और तामीरात सिर्फ 3 लोगों की तोड़ी गई हैं। सिर्फ 3 लोगों के मकानात पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। वो 3 लोग कौन हैं और कौन हो सकते हैं, वो आप बखूबी जानते हैं। जब पुलिस ये कह रही है कि 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ, तो क्या दोनों ग्रुपों के मुजरिमों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा? ये पूछने की बात है। चलिए, मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तार किया जाना, ये सब कुछ समझ में आने वाली बातें हैं, लेकिन बुलडोज़र से घर गिरा दिया जाना कहाँ का इंसाफ है? आखिर एक घर में कोई मुजरिम तने तनहा तो नहीं रहता, उसके साथ उसकी फैमिली और ख़ानदान के दीगर अफराद भी रहते हैं। जब घर गिरा दिया जाएगा तो दूसरे लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन को उन बेगुनाहों के सरों से छत छीन लेने का हक किसने दिया? आखिर ये बुलडोज़र कल्चर कब ख़त्म होगा जो हमारे आईन और संविधान के सरासर खिलाफ है? न किसी अदालत का फैसला आता है और न मुजरिम का जुर्म ही साबित होता है, इससे पहले उसके घर को ज़मींबोस कर दिया जाता है। ये जुल्म की इंतहा है। इससे आप किसी भी कौम का एतमाद नहीं जीत पाएंगे। इस तरह की एक तरफा और मुतअस्सिबाना कार्रवाई मुल्क में नफरत को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी है। नाजरीन, समाजी कारकुन समीउल्लाह खान लिखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ इन हिंदुत्वा वारदात पर मुल्क और बैरून मुल्क से इंसाफ पसंद गैर मुस्लिमों ने भी आवाज़ उठाई है। अलबत्ता मुस्लिम क़यादत को शायद अपनी कौम पर मुसल्लत इस हिंदुत्वा अजाब की कोई खबर नहीं मिल सकी है। इतना सब कुछ हो रहा है, पर कहीं कोई शोर, कोई इज़्तिराब महसूस किया आपने? सब अपने अपने में मगन और मस्त हैं। सितम बालाए सितम यह है कि अब भारत में मुसलमानों पर हिंदुत्वा के ये हैवानी मजालिम मामूल बन चुके हैं। चंद अफराद के अलावा किसी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, और तारीख़ गवाह है कि मजालिम को सहने का मामूल बना लेना ग़ुलामी की तरफ तेज़ रफ्तार सफ़र की अलामत होती है। नाजरीन, हमें सोचना होगा कि क्या हम वाकई बहुत तेज़ी के साथ ग़ुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश में मज़लूमाना ज़िंदगी गुजारने पर राज़ी हुए बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये तबसरा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारा चैनल सदाए हक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।